traveling today, so have to be a little quick. So we'll be live for another 10 minutes. There's no topic to cover as I mean, since it's on the move go live, but I'm happy to take any questions, and I hope you're able to hear me well. Um, if yes, let me know, and if any questions, do let me know. I'll see if uh, anybody joins. I think I'm live if I'm not wrong. Welcome to live chat. Yeah, correct. Okay. So we'll wait for 5-10 minutes. How the markets had been this week? They had been pretty stable. There are, cash. There are specific sectors which had a lot of kind of movement. If you look at the entire space of oil and gas, even hi Rajneesh, hi Mayur, hi Prakash. Thanks for tuning in. It's a very quick live. I'm on the way, on the move actually, so couldn't do it properly at 1 o'clock. And since I have a flight to catch that time, as I quickly say hello now. Hope you can hear me. If you can confirm, Rajneesh or Mayur or Bhanu, Mac, if you can confirm that you can hear me, that will be great. If you can hear. Hello Robin sir, hello, thank you for tuning in. कोई कंफर्म करेगा कि आपको आवाज़ आ रहा है? ओके भानु, वेरी गुड. Okay, great. So, as I said, yes, can hear you. Absolutely marvelous. So, yeah, any questions? This is a very short live for 10 minutes to take any of your questions. And I was just saying that markets had been pretty good last week. Don't want to talk about small case performance as such, as a lot of regulatory guidelines around what can be called out in a public video about the performance, and therefore performance are, if you go to small case now, you will notice that the percentage is now hidden, right, and you have to acknowledge a message from small case that your decisions will not be influenced by that percentage, and then you would be allowed to see that number. डॉक्टर चंद्रमणि जी का अल्फा ब्लेंड अच्छा नहीं काम कर रहा है, इट्स 6% लॉस. चंद्रमणि जी, आप अगर उसका इंडेक्स देखोगे अल्फा ब्लेंड का, it has kind of come back to its mean, where it started to have a fall from 15th of Feb. So अभी वापस उस नंबर पे आ गया फ्रॉम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम वेरी श्योर कि आपका जो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड तो जो साइकिल में आप अभी हो वहाँ पे वो नोशनल लॉस पे. सी नॉइज़ बहुत है. ओके सॉरी, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा माइक मेरे पास आ जाए. एक सेकंड रुकिए, क्योंकि मेरा माइक ही फोकस होना चाहिए इस समय, स्पीकर तो नहीं चाहिए. एक रुकिए, सॉरी सर, 1 सेकंड. आई थिंक दिस इज़ द माइक, राइट. तो अभी थोड़ा देखते हैं अगर बेटर हो तो. सो डॉक्टर चंद्रमणि, आई वाज सेइंग दैट जो आपका साइकिल है ऑफ इन्वेस्टमेंट, मे बी फ्रॉम दैट डे इट इज़ नोशनल लॉस, बट आई थिंक उसको नोशनली मानिए, बिकॉज ऑल आर वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज विच आर इन अल्फा जनरेशन राइट नाउ. सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. लिमिट इन्वेस्टेड हमारा वैसे भी रीबैलेंस काफ़ी मूव हो गया है फ्रॉम वीकली टू नाउ fortnightly, and therefore just give it some time. I think give it a month or two, it will all be settled. Sir, alpha blend small case always fall after each rebalancing. Why so? ऐसा तो नहीं है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब विल सी. बट देखिए जनरली क्या है ना, जो एक जो हमारा टाइम पीरियड है टू काइंड ऑफ टेस्ट इट आउट एंड काइंड ऑफ सी कि इट्स अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क और आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, वो अगर आप थोड़ा विंडो देखोगे तो 3 months का विंडो होता है. फ्रॉम आई मीन बैक टेस्टिंग की तो बात नहीं करना चाहिए, बट इवन इफ़ यू लुक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, बिकॉज बैक टेस्टिंग तो हम भले ही कितनी करते हैं, वो डेटा शेयर करना ही अलाउड नहीं है. प्लस बैक टेस्टिंग in a market may not have any, in such a volatile market may not have a tangible meaning, and therefore जब मैं बोलता हूँ कि portfolio is always forward looking, सो मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट साइकिल को 3 महीने का तो मिनिमम मानता हूँ. ये कहने के लिए तो ऑफकोर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एंड यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. बट अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो मार्केट की एक साइकिल है. अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आना अभी भी स्टार्ट हुए हैं. So you need to make sure that you give your portfolio, your investment
एटलीस्ट 3 to 6 months टू काइंड ऑफ सी कि वो एक हमारा जो बेंचमार्क आप मानो, वैसे बेंचमार्क ईयर टू डेट मैच होना चाहिए, मतलब आप चेक करोगे, but from a perspective of you, from a fresh investment and you trusting Golfi with your kind of research advice, give it 3 to 6 months is what I will say. लोग न्यू स्मॉल केस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर दीजिए अराउंड 1 लाख। सर एक साथ उतना अमाउंट हर कोई नहीं कर पा रहा है। नहीं लोग, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक उसका मैंने रीज़न लास्ट वीडियो में काफ़ी क्लियरली कॉल आउट किया था कि इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग को मल्टी फैक्टर जो हमने स्मॉल केस लॉन्च किया उसमें कहीं डिफरेंस करना है कि आप नहीं कर पा रहे बिकॉज 7.5 लाख नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द होल इंटेंट वॉज वेरी डिफरेंट देयर। हमारे जो इस समय वी आर 1500 यूजर्स, राइट, विच इज़ आई एम थैंक यू दैट वी हैव 1500 पेड सब्सक्राइबर्स नाउ एज ऑफ टुडे इन द लास्ट 4 months। सो जो उसमें 1500 डेटा में हम जब डेटा देखते हैं तो हमारे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो एक काफ़ी बड़ा टिकट साइज इन्वेस्ट करें, एंड वहाँ पे उनको नीड बेसिस रीबैलेंस चाहिए टू द लाइक्स ऑफ 20 लाख 30 लाख 40 लाख काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो तो इसलिए वो स्मॉल केस मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि उसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी कहीं भी किसी भी स्ट्रैटेजी से सुपीरियर है। ऑल स्ट्रैटेजीज हैव डिफरेंट टाइम साइकिल्स व्हेन दे प्ले आउट, एंड और ना ही आपको मल्टीपल स्मॉल केसेस सब्सक्राइब करने की कोई नीड है। इवन फ्रॉम मैं अपने गोल्फी की बात कर रहा हूँ। आप एक स्मॉल केस में हो, आपको सिर्फ देखना है कि आपका रीबैलेंस प्रेफरेंस क्या है, आपका वोलेटिलिटी से कितना काइंड ऑफ योर प्रेफरेंस है, एंड जस्ट गेट इनटू इट एंड रिमेन देयर। नया क्या लॉन्च हो रहा है, मेरा अच्छा नहीं है, मुझे एक और ले लेना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनी गुड रैशनल। वो नहीं आपको सोचना चाहिए। इसलिए अगर लोग आप ऑलरेडी अगर इन्वेस्टर हो, एक किसी स्मॉल के सब्सक्राइबर हो, दैट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। आप ऐसा सोचो। भानु प्रकाश सिंह, आई अल्फा प्लानिंग टू टेक बैलेंस और मल्टी फैक्टर, विच वन टू चूज और योर टीम इज कमिंग अप विद एनी न्यू स्मॉल केस। अभी नया स्मॉल केस भानु जी नहीं आ रहा है। भानु प्रकाश, आपके पास अल्फा है, अगर आपका वीकली रीबैलेंस प्रेफरेंस है वीकली या फोर्टनाइटली, तो एब्सोल्युटली दैट इज़ द राइट चॉइस। अगर आपको कभी लगे, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, पब्लिकली तो वैसे भी नहीं करना चाहिए और ना ही अलाउड है और ना ही इज़ अ राइट वे टू डू, बिकॉज आई डू नॉट नो यू, राइट, आई डू नॉट नो कि आप ने किस ऑब्जेक्टिव से वो इन्वेस्ट किया है। अगर आपको कोई मंथली रीबैलेंस प्रेफरेंस पे आना है तो आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी कहाँ मैच होगी। अगर अल्फा ब्लेंड बहुत हाई वोलेटाइल है तो बैलेंस बास्केट कुड बी मैचिंग योर काइंड ऑफ वोलेटिलिटी लेवल। सो उस तरीके से कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो। बाकी आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, chat.golfi ऐप है, वहाँ पे आई एम श्योर समवन इन द टीम विल हेल्प, एंड यू कैन बुक अ मीटिंग विद मी आल्सो, एज आई कीप सेइंग। meet.golfi ऐप पे जाइए, कैलेंडर ओपन है, आराम से बुक करिए। मनीष बोल रहे हैं, सर अल्फा में अब इन्वेस्ट कर दूँ स्टॉक चेंज के बाद या वेट करूँ? मनीष, मैंने पहले भी बोला, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्विकली, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हाई है। 50% आप कभी भी किसी भी दिन इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा थॉट नहीं देना चाहिए। 20-30% अपने पास कैश रख लो, बिकॉज वो काम आता है जब मार्केट्स में करेक्शन आते हैं, आपके पास हमेशा एक लिक्विडिटी होती है। और 20-30% आप ना इलेक्शंस के बाद इन्वेस्ट कर दो, सो दैट जो भी सेटलमेंट होना है मार्केट्स में इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, वो थोड़ा सा स्टीमल हो जाएगा। रिजल्ट्स भी अभी आना स्टार्ट हुए हैं, आनंद आर्टिक रिजल्ट्स कल आए, सब लोग काफ़ी द एंटायर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, I mean the entire investment from that industry was kind of very was looking at those numbers in a very positive way. So again, no recommendation, right? किसी का स्टॉक का नाम ले लिया मैंने, पहली बार यूट्यूब पर लेता नहीं हूँ, और हमारे पास ऐसा डिक्लेरेशन वो है भी नहीं, राइट, एज अ कंपनी वी आर नॉट ट्रैकिंग इट राइट नाउ, ना ही मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में या फिर किसी रिसर्च एडवाइस में, इट्स नॉट देयर। सो जस्ट क्लैरिफाई किया मैंने वो। So that is how you should plan, Manish. 50% ऑफ द कैपिटल जो आपको इक्विटी एलोकेशन का बनता है, उसके लिए यू नीड नॉट टाइम। मेरे माइक ऐसे पकड़ो, आई एम श्योर थोड़ा सा बेटर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप 20 लोग ट्यून इन हुए हो, इट्स अ बिग थिंग, एंड इट्स वर्थ, आई मीन आई फील कि दिस इज काइंड ऑफ फीडबैक दैट मैं एक being at the airport and I wanted to be live because I committed that every Saturday I have to be live unless it is really an issue, और 1 बजे नहीं कर पाया क्योंकि उसमें फ़्लाइट में होंगे, तो अभी किया, and 23 people have tuned in, which is very satisfactory,
एंड कोई भी क्वेश्चन हो हमारे व्हाट्सएप पे बात करिए फ्रॉम 7 AM to 11 PM वी आर यूजली ऑनलाइन, द एंटायर टीम इज़ ऑनलाइन। meet.golf मैं देख रहा हूँ काफ़ी मीटिंग बुक हो गई हैं। उससे अभी इशू ये हो रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि वो मीटिंग मेरी बहुत दिन बाद है, अगर 2-3 दिन के बाद है या 4 दिन के बाद है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप डायरेक्टली chat.golfi पे पिंग कर दो। एंड अगर meet.golfi पे कोई शेड्यूल नहीं मिल रहा है सो एक बार टीम से बात करके कोई अर्ली शेड्यूल आप कर लो। कभी कभी हमारा क्या होता है दिन में वी गेट 15-20 मिनट स्लॉट, हाफ एन स्लॉट इन बिटवीन। सो एब्सोल्युटली यू कैन आस्क द टीम कि मुझे आज कोई स्लॉट में अरेंज करा दो एंड देन वी कैन हैव अ 1-to-1 आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में कौन सा रीबैलेंस सही होगा सर? वीकली, मंथली, नीड बेसिस। सबका देखिए अलग अलग स्टाइल है, हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग है मार्केट से। बहुत से लोग वीकली रीबैलेंस में बहुत दे प्ले अलॉन्ग इन द मार्केट, राइट? दे प्ले अलॉन्ग इन द मार्केट एंड दे रियली लाइक टू हैव वीकली रीबैलेंस। Few people are in a very long term game. They look at need basis as the right choice for them. So आउट परफॉर्मेंस किस स्मॉल केस की क्या होगी वो डिपेंड करेगा फॉर विच पीरियड यू आर इन्वेस्टेड इन। Ultimately, your preference with need basis or weekly is your own kind of style, right? So you can look at that. One we are asking, what if what if all Golfi subscribers will place order? If they are buying, they will price fluctuate. Yeah, that's very right. See, as I mentioned, right, out of whatever 25-26 CR worth of money we have today in small cases, हमारा अल्फा ब्लेंड में हाईएस्ट अमाउंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 करोड़, राइट? तो जब वो 300-400 इन्वेस्टर्स 12 करोड़ रुपए 20% की सेल बाय हो रहा होता है, 2-3 करोड़ का माल बिक रहा है एक ही मिनट में। सो हम बहुत कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टॉक्स हमारे स्मॉल केस में हैं दे आर वेरी लिक्विड, जहाँ पे स्लिपेज ना आए। बट मार्केट्स में लिक्विडिटी का जो चैलेंज है इंडिया में दैट इज़ फॉर रियल एंड स्लिपेज में कम। बट इफ़ यू लुक एट अगेन लिटिल लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव दैट स्लिपेज हैज़ insignificant, right, from a perspective of your ultimate return. And मुझे have to close the live now. Last question ले रहा हूँ. I have subscribed some of your small case max, some small is selling a stock and others buying that stock. What's the logic? जनरली ऐसा होगा नहीं, बट अगर ऐसा हुआ है तो बाइंग तो नहीं हो रही होगी, ये हो रहा होगा कि हम एक में रिटेन कर रहे हैं और एक में प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे एज पर द स्ट्रैटेजी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक जगह बाय करके दूसरी जगह उसको खरीद रहे हैं। शिफ्ट तो नहीं हो रहा होगा, बट ऑफकोर्स यू कैन करेक्ट मी एंड यू कैन 1-to-1 में भी बता सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी में एक स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव हो गया, उसकी स्ट्रैटेजी में रीबैलेंस होना है, वहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। अदर स्ट्रैटेजी में इट कैन रिमेन इन्वेस्टेड, राइट, इन दैट, बिकॉज वो अलग अलग उसका मेथड अलग अलग है। एक वीकली रीबैलेंस